وہاں تک جائیں لوگوں کو اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے لیے یہ قانون اویلیبل ہے. تو آپ یہاں سے سیکھنے کے بعد یا سمجھنے کے بعد تو اپنے اس انفارمیشن کو اپنے ساتھ کی فیملیز میں بھی شیئر کریں تاکہ لوگ مختلف چیزوں پہ جا کے نقصان اٹھاتے ہیں ان کو کم سے کم جنرل نالج ہو. کیونکہ آپ وکیل تو نہیں بن سکتے لیکن جنرل نالج کم سے کم ہو کہ وہ بندے کو پتہ ہو کہ یہ قانون ہے اور یہ رستہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو یہی اسی وجہ سے میں نے میرے صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پہ خواتین کا ارینجمنٹ کریں تاکہ ہم ڈائریکٹ انٹریکشن کریں ان لوگوں تک اور ان لوگوں کے کویشچن آنسر ان کی فیملیز میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ سے آسانی سے وہ کویشچن آنسر کر کے تو ان کے پاس ایک ریڈی نالج موجود ہو اور وہ اس کا کوئی بندوبست کر سکے. پاکستان کا قانون پاکستان کا قانون اور کسی کو اچھا یہ بڑی تھوڑی سی حیرانگی کی بات اس لیے بھی ہے کہ ہم لوگ سارا دن اکثر فیملی میں بہت زیادہ کیبل دیکھتے ہیں پروگرامز اور میرے خیال 25-26 قسم کے چینل آتے ہیں مختلف نیوز چینل خبریں پورے بھی دیکھتے ہیں ہم ساری. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہنچے لوگ اور خدا کا شکر ہے کہ کلام تو کسی نہ کسی صورت میں اب چینلز کے تھرو پہنچ رہا ہے لیکن قانون کی بات ہم انٹرسٹ لیتے ہیں جب ہمارے پہ کوئی مسئلہ آتا ہے اس وقت ہم کسی چودھری کے پاس بھاگ جاتے ہیں یا محلے میں جو کوئی ایک آدھ ہمارا جو برادری سسٹم میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایک آدھ جو کونسلر بنا ہوتا ہے وہ آگے لگا ہوتا ہے اور وہ اکثر ہمارے پیسے ٹھگے جاتے ہیں اور نقصانات ہوتے ہیں. اسی وجہ ہے کہ ہم لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. آئین پاکستان ایک ایسی چیز ہے جس پہ یہ پورا ملک کا سٹرکچر کھڑا ہوا ہے, انتظامی سٹرکچر. پولیس کیسی بنی ہوئی ہے, فوج کیسے بنی ہے, ورکنگ کیسے کرتی ہے, کس اصولوں کے تحت کرتی ہے, عدالتیں کس اصولوں کے تحت کرتی ہے, یا جج کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں, یا ہمارے جو سسٹم میں ہم لوگ وکلا کیسے وکیل بنے ہوئے, ہم نے یونیفارم کس قانون کے تحت پہنا ہوا, یا آپ کو اگر کسی نے گالی گلوچ کر دیا مارا ہے تو وہ قانون کے تحت. اس کا بنیادی سٹرکچر ہے. اس کے بعد اسی سے طاقت پا کر آگے سے قانون بنتے ہیں جو ہم آپ کو بتانے آئے ہیں. آئین سے بات سٹارٹ ہوتی ہے. آپ نے عام سنا ہوگا نا کہ ہائی کورٹ ریٹ کر دے, ایک عام فہم سی بات ہے. ہائی کورٹ ریٹ پھر کیڑے قانون کے تحت کر دے. ریٹ ہوندی کی چیز, ریٹ اصل میں آئین کے اندر دیا ہوا ایک حق ہے کہ کوئی بھی آپ کو سرکاری ملازم جو ہے وہ چھیڑے, تنگ کرے, آپ کا کوئی حقوق سلب کرے تو آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, اس کے خلاف ریٹ کر دیتے ہیں. تو وہ آئین پاکستان 1973 کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کی جو پہلی 25 دفعات ہے نا, پہلی 25 دفعات اس میں 2 چھوڑنے کے بعد آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جی پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے, یہ تو اسلامی ملک ہے جی. ہم اس کے وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ وہ آئین کے آرٹیکل 2 میں لکھا ہوا ہے. اور 2A کے اندر ہم اگر جو ہمارے پڑھے لکھے بچے ہیں یا فیمیلز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں دستور سار اسمبلی اور مطالعہ پاکستان کے 14 نکات اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں. ان میں سے کچھ حصہ آئین پاکستان میں بیان کیا ہوا ہے. یہ نقطے ہیں جس کے تحت یہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. اس کے 25 آرٹیکل جو ہیں وہ بتاتے یہ ہیں کہ ہمیں کھانے کا حق حاصل ہے, ہمیں جائیداد لینے کا حق حاصل ہے, ہمیں نوکری کا حق حاصل ہے, ہمیں مذہب رکھنے کا حق حاصل ہے, ہم چرچ بنا سکتے ہیں, ہم مذہبی سکول یا سیمنریز بنا سکتے ہیں, ہم چینلز بنا سکتے ہیں. وہ 25 آرٹیکل میں لکھا ہوا. اسی کے اندر جو 25 آرٹیکل ہے, جو آرٹیکل سے مراد کیا, دفعہ نمبر 25 جو ہے وہ یہ کہتی ہے تمام شہری برابر ہیں. انہی 25 آرٹیکل کے تحت ہمارے چرچز بھی بنے ہوئے ہیں. چرچ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ میں کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہوں, دوسرا میں سے چھین نہیں سکتا. اس کی دفعات ہے بنیادی 25. یہ 1973 اور اسی 73 کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کیسے ہوگا, جج کیسے مقرر ہوگا, قومی اسمبلی کیسے بنتی ہے, اور اس کے صدر کے پاس کیا اختیار ہے, وزیر اعظم کے پاس کیا اختیار ہے. یہ 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے. پاکستان میں 3 آئین تھے. 1956 کا آئین جو ختم ہو گیا, اس کو ریپلیس کیا 1962 کے آئین نے.
जब सदारती हुकूमत थी अयूब खान की, जनरल अयूब की, और उसके बाद अब 1973 का आइन राजुल वक्त है। बार बार आइन पाकिस्तान की भी बात हुई, मेरे ख्याल में कई लोगों के ऊपर से गुजर गई थी बात, इसलिए मैंने थोड़ा सा तसलीस करने की कोशिश की है। अगर अभी भी बात नहीं समझ लगी, मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर एक आम ज़बान में आपको ये बात समझ लग गई होगी कि अभी आप स्टॉप की तरफ निकलें और ये सामने मेट्रो पे बैठ जाएं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिड मेट्रो अथॉरिटी बनी हुई है जिसके तहत ये बस सर्विस चल रही है, तो वो एक किसी कानून के तहत चल रही है। पुलिस अगर गश्त कर रही है और आपको पकड़ती है तो वो किसी दफ़ा के तहत पकड़ेगी अगर आपको जुर्म करेंगे, तो उसकी बुनियाद आइन से डिवॉल्व होती है। हमारा सारा सिस्टम, इंतज़ामी सिस्टम जो है वो आइन से स्टार्ट होता है। अब आता हूँ मैं अपनी टॉपिक की तरफ। हमारे जो मसीही लोग हैं उनको 3 मसाइल का बड़ा अहम सामना होता है, जहाँ ख़वातीन को खास कर डाइवोर्स, नानो नफका और वरासत का मसला। वरासत के मुतालिक बड़ा एक, मैं तलाक की तरफ जाने की बजाय सबसे पहले वरासत की तरफ आता हूँ। इसमें मुख्तलिफ लोगों को शुरू में इख्तलाफ रहा है, लेकिन अब ये हकीकत की बात है कि कानून ख़वातीन को बराबर का हिस्सा प्रॉपर्टी में देता है। 1992 में से पहले ख़वातीन को हमारे पंजाब के अंदर बराबर का हिस्सा नहीं मिलता था। अब ये बात लिखी पड़ी है दफ़ा 36 के तहत, सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत अब ख़वातीन को बराबर का हिस्सा है। जैसे किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो उसकी बेवा जो है वो एक मकान के अंदर मालिक बनती है, तो उसके बच्चे जो बालग हैं वो भी बेटियां और बेटे, बेवा का 1/3 खारिज लैदा करने के बाद, या आप लिख सकते हैं सेक्शन 36 में, बेवा का 1/3 हिस्सा माइनस होने के बाद बाकी बच्चों में वो बराबर तकसीम होगा। मतलब आप कह लें कि अगर मफरूज़े के तौर पर 10 मरले ज़मीन है और 10 मरले ज़मीन के अंदर से 2 मरले बेवा के निकल गए, तो बाकी अगर 5 बच्चे हैं तो उनमें वो बराबर का तकसीम होगा, और वो उस हक से खातून को नहीं हटाया जा सकता। वो कानूनी तौर पर अगर कोई, अब तो नया कानून भी आ गया हुआ है, उसके तहत अब ये काबिल सज़ा जुर्म भी है कि अगर किसी खातून से उसका हिस्सा ले लिया जाए तो वो एक इंडिपेंडेंट पिटीशन भी फाइल कर सकती है विरासत के अलावा। ये अब उसको ये हक हासिल है, पहले भी था लेकिन अब क्लियर कट आ चुका है कानून भी कि आप जाएंगे कोर्ट के अंदर जाके सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे। अब वो नादरा देता है, मतलब किसी बंदे की जब डेथ होगी या उसकी अगर बैंक में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, पहले आप जाते थे अदालतों में, अब आजकल नादरा में एक फैसिलिटी आ गई हुई है कि सारों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करते हैं और उनको ले जाते हैं नादरा में। नादरा की है 20,000 रुपये फीस, वो वहाँ से आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। वो आप बैंक में जाएंगे, वो बेवा का हिस्सा साइड पे करेंगे और बाकी बच्चों में बराबर तकसीम करेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, जी। आदमी ने एक शादी की है, उसकी बीवी की डेथ हो गई है या वो उसे छोड़ के चली गई है, उन्होंने दोबारा शादी कर ली है, तो अब उस आदमी की डेथ हो गई है, तो उस बेवा को भी 1/3 हिस्सा मिलेगा, तीसरा हिस्सा मिलेगा जो दूसरी जगह पर आई है? बिल्कुल उसको भी मिलेगा, लेकिन उसमें ये फर्ज है कि अगर पहली बीवी में से अगर बच्चे हैं जी और वो कानूनी तौर पर वो डाइवोर्स लेके चली गई है जी, हमारे में पंचायती तलाक नहीं है, मैं इसलिए उस टॉपिक की तरफ भी आऊँगा। अगर वो तलाक प्रॉपर लेके गई है और उसके बच्चे हैं, तो बंदे की जब डेथ होगी तो बच्चों का भी हिस्सा होगा, पहली वाली का। तो अगर दूसरी वाली की होगी तो उन बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा? उनको भी हिस्सा मिलेगा। तो वो हिस्सा माँ के हिस्से में से मिलेगा या बाप के हिस्से? माँ का हिस्सा लैदा निकलेगा और उसके बाद जो बचेगा उसमें से वो सब बच्चों का हिस्सा। थैंक यू सर। ये क्लियर कट बात है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से मुराद होता है मूवेबल और इमूवेबल, मनकूला गैर मनकूला। मनकूला से मुराद होता है रुपया, पैसा, जेवर जो ट्रांसफर हो जाता है, और गैर मनकूला से मुराद होता है जो ये फिक्स एसेट है, जैसे प्रॉपर्टी है। मनकूला में गाड़ी भी आती है, मोटरसाइकिल भी आती है, जेवर आता है, प्राइस बॉन्ड आता है, यानी कोई भी कैश मनी की सूरत में। और गैर मनकूला में आपकी ज़रूरी जो भी फिक्स है ज़मीन के ऊपर,
वो जायदाद शामिल होती है। तो उसमें से पूरी प्रॉपर्टी में से 1/3 सेपरेट निकलेगा और जो बकिया बचेगा वो बच्चों में, खातून में और उसके जो बेटों में बराबर के तकसीम होंगे। मतलब ये नहीं होगा कि उसको अगर एक मरला ज़मीन लड़की को आया है तो लड़के को 2 आ जाएगा, ये मुसलमानों में आता है, क्रिश्चियंस में ये बराबर कर रहे हैं। ये हमारे मसाइल हैं बहुत सारे। तो इसी तरीके से आप वो सक्सेशन एक्ट जो है वो जाके गैर मनकूला जायदाद के लिए आप जाएंगे नादरा में। आजकल पहले जाते थे बैंक से आप सर्टिफिकेट लेते थे और उसके बाद आप चले जाते थे अदालत में, जहाँ पे साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते थे कि जी गवाह भी लैके आओ तो अपना सर्टिफिकेट पेश करो तो फिर जाके डिग्री केस होंदा सी, तो उसकी कापी लैके फिर बैंकों से जाना पैंदा सी। आजकल नादरा में एक फैसिलिटी दे दी हुई है, नया एक्ट आया सक्सेशन एक्ट का 2021, उसके तहत अब आप नादरा में जाते हैं, उन्होंने काउंटर बनाया हुआ है। काउंटर में जाके कहते हैं जी इतना शख्स की डेथ हो गई है, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है जो कि अप्लाई होता है वहाँ से अपना यूनियन काउंसिल से ले लेते हैं आप। उसके बाद वो उस सर्टिफिकेट को लेके आपके बच्चों के जो आईडी कार्ड हैं या जो भी उनका पादी साहब से अपने सर्टिफिकेट लिया है उसकी वेरिफिकेशन करके आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट की कॉपी आप लेके जाते हैं बैंक में, वहाँ से वो आपको बराबर की तकसीम कर देते हैं। लेकिन अगर साथ किसी वजह से झगड़ा पैदा हो जाए, नादरा को शक पड़ जाए कि इसमें अभी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उसकी कॉपी लेके फिर आप अदालत में केस करते हैं। वहाँ पे आपको शहादतें देनी पड़ती हैं कि जी हाँ मैं हूँ। जैसे आपने अभी मिसाल दी है कि पहली शादी या दूसरी शादी का नादरा में रिकॉर्ड आ जाए और प्रॉपरली डाइवोर्स ना ली हो, स्टाम्प वाली डाइवोर्स हुई हो। स्टाम्प वाली डाइवोर्स कोई चक्कर नहीं है हमारा। ये जो चौधरी बैठ के कह देते हैं ना कि स्टाम्प ले कर लो जी, छठो परा की करना जी, अदालत से की लैन जाना। जो निकाह रजिस्टर हो गया, आईडी कार्ड पे चढ़ गया, जिस पे लिखा गया कि मिसिज है वो, उसको चेंज करवाने के लिए आपको कोर्ट की डिग्री लेनी पड़ेगी हर सूरत। ये जो पंचायती तलाक का सिस्टम है ये क्रिश्चियनों में नहीं होता। ये आप बिल्कुल समझ लें कि आपको कोई 4 बंदों ने बिठा के कह दिया, कोई फैमिली में इशू बन ही जाता है ना कि छोटा परा की करना। डाइवोर्स के लिए आपको अदालत में से डाइवोर्स लेनी पड़ेगी, वेदर आपकी दोनों पार्टियां राजी नहीं हो, कोर्ट में जाके बयान देंगी और वहां से डिग्री लेने के बाद उसमें जमा करेंगे। इसलिए ये बड़ी अहम चीज़ है चैनल का। और प्रवेश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे ये प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत आपने अरेंज किया हमारे लिए, तो हम यहाँ पे लोगों को कानून की इंफॉर्मेशन दे सकें। तो प्रवेश भाई